क्योंकि अगर आपका आनंद इस पे निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, Because if your joy depends on the fact that your car is bigger, जिस दिन बगल के चोपड़ा ने ले ली बड़ी गाड़ी, आपका आनंद चला जाएगा. the day your neighbor Chopra bought a bigger car, your joy will leave you. फिर आप कहोगे मुझे और बड़ी लेनी है इससे. Then you'll be under pressure to buy a bigger car. मगर परमेश्वर आपको वो आनंद से भरना चाहता है जो उसकी आत्मा से आता है और जो ऊपर नीचे नहीं होता. But the Lord In a wants time that we are surrounded by bad news, oppression, depression, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ बुरी खबर है, तनाव है, सताव है. and the answer to that is और उसका उत्तर है joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद. Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद. Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद. Amen. I love what an amazing man of God, C.S. Lewis, said. मुझे बहुत पसंद है C.S. लुइस जो प्रभु के अद्भुत जंत्र ने He लिखा. said, joy is the serious business of heaven. उन्होंने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर बिजनेस है. Come on, are you here? सुन रहे हैं यहाँ पे? He said, joy is the serious business of heaven. उसने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है. That means whenever heaven has to do some serious business, heaven releases joy. इसका मतलब जब कभी स्वर्ग को कुछ गंभीर मुद्दा पूरा करना होता है तो स्वर्ग उसके लिए आनंद भेजता है. So many believers are not walking in victory because they are not walking in joy. इतने सारे मसीह लोग जय में इसीलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो आनंद में नहीं चल रहे हैं. I wish you could see some faces that I'm seeing right now. काश कि आप कुछ चेहरे देख सकते जो मैं देख रहा हूं इस समय. Joy is alien to so many Christians. कितने मसीहों के लिए आनंद एक अनजान मुद्दा है. Because you know, guess what? Let me tell you one thing. हमको लगता है आनंदित होना आत्मिक नहीं है. Because we think to be joyful is not spiritual. हमें लगता है आत्मिक होना है. We think to be spiritual is to have a long face. जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए. नहीं, जमात थोड़ा हंस जाए. Let the people of God laugh. Amen. Amen. Your Father wants to fill your heart overflowing with the joy that comes from the Holy Spirit. आपका पिता आपके दिल को उस आनंद से उमड़ देना चाहता है जो पवित्र आत्मा से आता है. It's not a normal joy. ये साधारण आनंद नहीं है. It's not a joy because you got promotion. ये वो आनंद नहीं है कि आपकी तरक्की हो गई नौकरी में. It's not a joy because you got a bigger business deal. बड़ी बिजनेस की डील मिल गई. ये वो आनंद नहीं है. It's not a joy because whatever, you got a visa, you went to another country. जो कुछ भी कारण हो सकता है, वीजा मिला दूसरे देश. All of that is awesome. वो सब अच्छा है. But God wants to give you a joy लेकिन परमेश्वर आपको वो आनंद देना चाहता that है does not depend upon something external, but that bubbles from inside. जो आनंद किसी बाहर की बात पर निर्भर ही नहीं करता, जो अंदर से ही उमड़ता रहता है. That means a person whose salary is 8,000 and a person whose salary is 80 lakh both can have the same joy in the Holy Ghost. इसका मतलब एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 8,000 है और एक व्यक्ति जिसकी 80 लाख तनख्वाह है, दोनों पवित्र आत्मा में एक ही आनंद में जी सकते हैं. क्योंकि अगर आपका आनंद इस पे निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, Because if your joy depends on the fact that your car is bigger, जिस दिन बगल के चोपड़ा ने ले ली बड़ी गाड़ी, आपका आनंद चला जाएगा. the day your neighbor Chopra bought a bigger car, your joy will leave you. फिर आप कहोगे मुझे और बड़ी लेनी है इससे. Then you'll be under pressure to buy a bigger car. मगर परमेश्वर आपको वो आनंद से भरना चाहता है जो उसकी आत्मा से आता है और जो ऊपर नीचे नहीं होता. But the Lord wants to fill you with a joy that comes from His Spirit and that does not go down. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम लोग जॉय में नहीं जिएंगे तो हम मसीह जीवन को हमने जीना सीखा ही नहीं. I'm telling you, if we don't live in joy, we have not learned to live a Christian life. क्योंकि 1/3 परमेश्वर का राज्य क्या है?
joy. Because 1/3 of God's kingdom is joy, आनंद. अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड. लोग क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड. somebody is pressing them. जब डिप्रेस कहा जाता है तो कोई दबाव डाल रहा है, कोई दबा रहा है, इसलिए. एक भार There's a लोगों के weight. सर में. There's a weight on people's head. भार. There's a weight. आज सारा भार निकल रहा है यीशु के नाम. Today all the weights are leaving you in Jesus' name. Amen. क्या बोलोगे आप? What will you say? डिप्रेशन. Depression, bye bye. फिर से बोलो, डिप्रेशन. Again, depression, bye bye. बोलो, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी तुझे कभी नहीं मिलेंगे दोबारा. Say, me and my coming generations will never meet you again. I declare that you and your coming generations will never know what depression means in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं कि आप और आपके आने वाली पीढ़ियों को यह पता भी नहीं होगा कि डिप्रेशन क्या चीज है. Say, depression is not my portion. Joy is my portion. Joy is my portion. Joy. Woo! Hallelujah! अपने मुंह को खोलो इस समय. Come on, Open your celebrate. mouth. आनंद मनाएं. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, don't tolerate, celebrate. सहो नहीं, आनंदित हो जाओ. हाँ, कई मसीह लोग क्या बोलते हैं? What some people कैसे हैं आप? will say. How are you? हाँ, कट रही है. Oh, I'm just going through circles. अरे, अगर मसीह लोग बोले कट रही है तो शर्म आनी चाहिए हमें. If believers say life is just going on, it's a shameful thing. आप बोलो, मैं हूं blessed, anointed, joyful, You should say, thankful, grateful and full of the Holy Ghost. मैं आनंद से भरा हूं, मैं अभिषेक से भरा हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं. Amen. परमेश्वर आपके आखिरी में फुल लगाना चाहता है. फुल, जॉय फुल, थैंक फुल, पावर फुल, होली स्पिरिट फुल. Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. So, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम इस दुनिया में तो हो मगर तुम इस दुनिया के. The word of God says you are in this world but you're not of this world. आप जानते हैं जैसे अमेरिका का जो एम्बेसी है, दूतावास है जो दिल्ली में, You know the American embassy in Delhi? वहां पे इंडिया का लॉ नहीं चलता. The Indian law does not work there. जानते हैं आप, वहां पे अमेरिका का लॉ चलता है. The American law is applied. सो अगर दिल्ली में कुछ भी हो जाए, So no matter what happens in वो Delhi, उस दूतावास को नहीं छू सकता. it will not affect that. अगर यहाँ कितनी भी रिसेशन आ जाए, गरीबी आ जाए, वहां पे भरपूरी होगी क्योंकि वो कहीं और देश का दूतावास है. No matter how much recession, what kind of economical crisis comes in this country, it will not affect the embassy. आपको ये समझना है, आप स्वर्ग का दूतावास हो पृथ्वी पे. You have to understand, you are the ambassadors of heaven on earth. आप स्वर्गीय गोशेन हो. You are the heavenly Goshen. मैंने कहा आप स्वर्गीय गोशेन हो. I said you are the heavenly यानी Goshen. दुनिया में जिसको भी कुछ छूने की अनुमति है, परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों को छूने की शैतान को अनुमति नहीं है. That means whatever the devil can touch in this world, the Father says the devil cannot touch my children. Amen. बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूं. Say I'm बोलो in मेरे spiritual बच्चे आत्मिक Goshen. गोशेन में हैं. My children are in spiritual Goshen. Hallelujah. Can be seated. आप बैठ सकते हैं. Woo. Glory.
Amen. मैं तो नॉर्मल सर्विस करना चाहता था. I wanted to do a normal service. मैं तो एक नॉर्मल वचन लेके आया था. I came with a normal word. मगर जो बॉस है वो बॉस है. But the boss is the boss. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सीख लो कि अनॉइंटिंग के अंडर एक्सपोज होना कैसा है. The Holy Spirit wants you to learn how to be exposed under the anointing. Amen. आप देखते हैं जैसे किसी को कैंसर है तो वो जाते हैं रेडिएशन थेरेपी के लिए. If someone has cancer, they go for radiation. अगर कहीं पे ट्यूमर है If there's a tumor anywhere, तो वहां पे लाइट रेज मारी जाती हैं, They- रेडियो वेव्स मारी जाती हैं, लाइट वेव्स मारी जाती हैं, they put radio waves, light waves there, रेडिएशन वेव जो भी होता है वो, और वैसे वो उस ट्यूमर को नाश कर देता है. and that's how it destroys that तो tumor. उस एरिया को So- एक्सपोज होना पड़ता है उन वेव्स में. That area has to be exposed to those waves. ऐसे ही Similarly, हमें सीखना है we have to learn कि परमेश्वर के उस मैनिफेस्ट प्रेजेंस में, उस अनॉइंटिंग के अंदर अपने आप को कैसे एक्सपोज करना है. that how to expose ourselves in that manifested anointing in the presence of God. Amen. And as you expose yourself under the anointing, और जब आप अभिषेक के अधीन अपने आप को एक्सपोज करते हैं, everything that is ungodly will start to leave you. जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको छोड़ के चला There is a जाएगा. cleansing that will start happening. एक सफाई, एक शुद्धिकरण होता है. Amen. Amen. So, joy is the serious business of heaven. आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है. कभी पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं. When sometimes people get filled with the Holy Spirit, they start to laugh and people say, "What are these?" प्रभु कह रहा है मेरा सीरियस काम चल रहा है वहां पे. The Lord is saying, "I'm doing some serious work there." क्या चल रहा है? What is happening? सीरियस काम चल रहा है. Serious work. एक बार प्रभु के एक दास केनेथी हेगन, One time, a man of God, Kenneth Hagin, वो जब 14 साल के थे तो उनको हृदय का एक रोग था, when he was 14 years old, he had a heart disease. जिसकी वजह से you can take it. जिसकी वजह से वो मरने के वो बेड में थे, Because of which he was about to die. He was on a deathbed. जिसकी वजह से वो मरने के उसमें थे कगार में, He was at the verge of dying. और वो मर भी गए थे और उनकी मम्मी ने प्रार्थना करी और उनको वो वापस आ गए. And he died, his mother prayed and he came back to और life. उसके बाद After that, जब वो काफी सेवा कर चुके, when he had served for a वही long time, सिम्टम उनको वापस आ the गए. same symptoms came back to him. और इतनी बुरी सिम्टम उनको लगा कि आज मैं मर जाऊंगा. And they came back so severely that he thought he's going to die. और शैतान उनके कान में बोल के हंसने लगा, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तो मर जाएगा. And the devil kept on speaking in his ears and laughing, "This is your last day, you're going to die today." और आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला? You know what he said? वो बिस्तर में थे, उन्होंने कहा मेरे पास इतनी भी सामर्थ नहीं बच गई थी मैं कि मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकूं. He said, "I didn't even have so much ability to declare God's word." तो बेड में लेटे हुए थे, He was just lying down तो उन्होंने ऐसे कहा, and he said, हा 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 हा. तो शैतान ने कहा ये क्या कर रहा है तू? the devil asked him, "What are you doing?" शैतान कैसे बात करता है हमारे साथ? How does the devil speak to us? थॉट्स है. Through our thoughts. शैतान ने कहा ये क्या कर रहा है? The devil said, "What are you doing?" उन्होंने कहा शैतान मैं तुझ पे हंस रहा हूं. He said, "I'm laughing at you, devil." शैतान पे चिल्लाए बहुत हो आप, पर कभी हंसे हो? You have shouted at the devil so much, but have you ever laughed at him? बाइबल बताती है कुलोसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्ला तमाशा बनाया. Colossians 2:15, the Bible tells us that Jesus made an open show of the devil. आमीन. क्या किया यीशु मसीह ने? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर क्या किया? उनका क्या किया? खुल्ला तमाशा बनाया. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया. The Lord Jesus has made an open show of the devil. सो जब आप क्रूस को देखते हैं When you look at the cross, तो वहां पे दो चीज हुई. two things happened there. यीशु मसीह की जय
the victory of Jesus और शैतान का तमाशा. and the open show of the devil. Amen. और फिर वो ऐसे करने लगे. And again he kept on laughing slowly. तो शैतान ने उनको बोला, The devil said, तू पागल है, you've gone crazy. क्यों हंस रहा है? Why are you laughing? आप जानते हैं एक चीज, You know one thing? शैतान को पसंद नहीं है कोई हंसे उस पे. The devil does not like the people बड़ा laughing. ईगो वाला बंदा है वो. He has so much ego. उसके अंदर मैं बहुत है. He has too much self. सबसे पहली मैं स्वर्ग में उसी ने करी The थी. first self was from him. उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर He लगाऊंगा. said, I will make my throne above the throne of God. मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा. I will be like God. सो अगर आप शैतान पे हंसोगे ना, भाग जाएगा बहुत जल्दी. If you will laugh at the devil, he तो will इसे run पसंद नहीं है away कोई हंसे उस पे. because he doesn't like people laughing at him. फिर वो कहने लगे So he kept on doing this. बोला तू क्यों हंस रहा है? He said, why are you doing this? उन्होंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है. He said, I'm laughing because you are defeated. मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. It is written, we are healed by the stripes of Jesus. और वो बताते हैं And he tells- 45 मिनट तक मैं हंसता रहा. For 45 minutes he kept on laughing. 45 मिनट तक For वो कहने 45 लगे. minutes. कई लोग पता कहते हैं अब हमें फील ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें. Some people say, I don't even feel it, what can I do? Joy is not a feeling. आनंद एक भावना नहीं है. I said joy is not a feeling. मैंने कहा आनंद कोई भावना नहीं है. Amen. Joy is a response. आनंद एक जवाब है. I said joy is a response. मैंने कहा आनंद एक जवाब है. It's a response. वो एक जवाब है. You won't feel like joy, आपको आनंद सा महसूस but नहीं when you होगा. respond to the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया your करते हो, feelings will change. आपकी भावनाएं बदल जाएंगी. याद है मैंने आपको लास्ट संडे के बताया था, परमेश्वर के एक दास स्मिथ विगल्सवर्थ क्या कहते थे, जब मैं सुबह उठता हूँ Remember I told you last Sunday, a man of God, Smith Wigglesworth, he तो said, मैं हाई स्पीड डांसिंग करता हूँ when अपने I कमरे wake में up in the सुबह उठ के. morning, I do high speed dancing in my room every morning. बहुत सारे आप जो लोग हो ना, आप बड़े भोले हो. So many of you are very innocent. And the Bible says simple. बाइबल कहती है जो सामान्य है, साधारण Simple. है, सिंपल है. How long will you remain simple? कब तक सिंपल बने रहोगे? तो प्रभु कह रहा है भोले कब तक खाएगा छोले. सो शैतान कहता है The devil says, वो कभी भी तू नहीं बोलेगा. वो क्या बोलेगा? मैं डिप्रेस्ड हूं. the devil says, I am depressed. और आपको देगा और आप ले लोगे. मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं. मजे की बात क्या है, ये वो बंदा बोल रहा है जिसके अंदर से आनंद की नदी बह रही है. The thing is, the guy who has the rivers of joy within him is saying this. A depressed believer is unscriptural. एक डिप्रेस्ड विश्वासी बाइबल के विरोध में है, बाइबल के खिलाफ है बात. हमें लाइक नहीं, बाइबल के विरोध में नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि क्या बोलें, बाइबल से मेल नहीं खाओ, बाइबल से मेल नहीं खाओ. या हाउ इज दैट पॉसिबल. या ये संभव भी कैसे है, बाइबल के अनुसार ही हाउ नहीं इज है. दैट पॉसिबल. ये संभव ही नहीं है. वेयर इज द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा कहाँ पे है? कहाँ है पवित्र आत्मा? हाँ, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं. लगाओ 2 कोरिन्थियों 3:16. कहाँ है पवित्र आत्मा? Where is the Holy Spirit? Oh sorry, 1 Corinthians. पक्की बात है आपको? Are you sure? तो आपको वचन में से दिखाता हूं. Let's show you from the word. क्या तुम नहीं जानते? Do you not know? क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि कई नहीं जानते. Why is Paul saying this? Because many don't know. क्या तुम नहीं जानते Do you not know कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit dwells in you. So परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? यही तो दिक्कत है। That's the problem. कई लोग ऐसे बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? अरे परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? कहाँ है पवित्र आत्मा? बोलो मेरे अंदर है। Say he's inside of me. बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। Say I am the temple of the Holy Spirit. फिर से बोलो। Say it again. कम ऑन डिक्लेयर करो इस बात को। घोषणा करो। एक बार फिर से बोलो। Say it one more time. एक बार फिर से बोलो। Say it another time. कोई बोलेगा इतनी बार क्यों बोले? Somebody will say, why should we say so many times? कितने लोगों को अपना राष्ट्रगान याद है? How many of you जनगण। know the national anthem? जिसको नहीं याद, If you don't know the national anthem, चलो किसको याद है? फिर से हाथ खड़ा how करो। many of you know it? याद भी नहीं होगा आपको कि आखिरी बार आपने कब पढ़ा था उसको। You won't even remember when was the last time you read it. What you repeatedly do becomes a part of you. जो आप बार बार दोहराते हो आपका हिस्सा बन जाता है. क्योंकि आपने बार बार उसको स्कूल में बोला, असेंबली में, Because he said it so many times in the वो assembly. आपके अंदर चला गया। It has gone inside of you. अब कोई उसको आपसे नहीं चुरा सकता। Now nobody can take it away ऐसे from ही you. जब परमेश्वर का वचन रोज आप अपने हृदय में डालोगे सुबह शाम, वो आपका हिस्सा बन जाएगा और शैतान उस वचन को चोरी नहीं कर सकता। Just like that, when you repeat the word of God in your house every day, it will become a part of you, and the devil will not be able to steal it from you. Amen. You can be seated. एक बात बताऊं आपको, मैं तो वचन शुरू ही नहीं किया अभी। I have not even started the word. फ्लो? किसने बोला फ्लो? Amen. So आज आपको मैं ऐसी दवाई बताऊंगा एक, I'm going to tell you about a medicine today, जो बहुत मुश्किल है which is very difficult इसको पाना, to obtain it, मगर फ्री है। but it's free. जानना चाहते हैं? You want to know? Okay. Proverbs 17:22. नीति वचन 17 उसका 22. Proverbs 17:22. A merry heart does good like medicine. मन का आनंद अच्छी औषधि या दवाई. क्या है मन का आनंद? क्या है मन का आनंद? People will not even realize it, but if you are joyful, it will be very difficult for you to fall sick. लोग इस बात को पहचानते भी नहीं, लेकिन अगर आप आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बीमार होना. कितने लोग चंगा रहना चाहते हैं? How many of you want to be healthy, live healthy? परमेश्वर कह रहा है इससे पहले तेरा शरीर चंगा हो, तेरा मन चंगा होना चाहिए। The Lord is saying before your body is healed, your heart has to be healed. तेरा मन जब मेरे आनंद से भर जाएगा तो वो एक दवाई की तरह काम करेगा तेरे पूरे शरीर में। When your heart is filled with my joy, it will work like medicine for all your body. पर आगे सुनो क्या लिखा है? But hear carefully. But a broken spirit dries the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं. आज सूखी हड्डियां सुनी आपने कहीं और? You heard? इज़ीकियल ने एक दर्शन देखा और उसने देखा सूखी हड्डियों का एक झुंड था। आज कई मसीहों का झुंड भी है मगर सूखी हड्डियां हैं और प्रभु कह रहा है भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों के ऊपर, मैं इनको अपने मांस और लहू से अपनी आत्मा से भर दूंगा। Yeah, Ezekiel, he saw a valley of dry bones, and the Lord said, prophesy and I will fill them with life. Amen. Hallelujah. So कितने लोग डिवाइन हेल्थ में चलना चाहते हैं? How many of you want to live in divine health? मैं आपको बता रहा हूं, जो आप जानते हैं जब हम लोग बड़े हुए तो सबसे पहले क्या चीज हुई? You know, when we were growing, what happened first?
मैंने आपको क्या बताया, कई लोग कह रहे होंगे अरे यार आज का जो वचन है ना वो आत्मिक नहीं लग रहा है, Some people are thinking today's word is not spiritual क्योंकि हम आनंद को आत्मिक नहीं समझते। because we don't think joy is spiritual. हम सोचते हंसना, ये क्या बात है, हंस रहे हैं, laughing. ये प्रभु के बंदे हंस रहे हैं। What's there to laugh? People of God, why are you laughing? हम कहते हैं कहीं रो रहे हैं ना लोग, तो हम कहते हैं वाह We say if people are crying, wow. प्रभु क्या मूव कर रहा था, सब रो रहे थे वहाँ। God was moving so mightily. मगर अगर Everybody was सब crying. हंस रहे हैं But if everybody is laughing, तो हम कहते हैं ये क्या बात है, say what is ये this? तो पागलपन है सब। This is madness. मतलब हम कह रहे हैं प्रभु केवल रुलाने वाला है, प्रभु हंसाने वाला नहीं So है। we are saying God only knows how to make people cry. He doesn't know how to make them laugh. मगर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, But I have news for you. वो कहता है तेरे आंसुओं को मैं हंसने के ठहाकों में बदल दूंगा। He says, I will turn your tears into laughters of joy. Amen. Even though mourning may happen for a night, but joy comes in the morning. चाहे रात को दुख विलाप हो, लेकिन आनंद भोर के साथ आता है. अगर कोई आज रात को रो कर आया है, If somebody cried last night, तो आज आप उस आनंद से भर कर जा रहे हो इस जगह से, यीशु के नाम में। today you're going back full of that joy in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, प्रेरितों के कार्य 13 उसकी 52 आयत 52, Acts 13:52. Let's read it. Come on, first time, can you read it? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए. किससे? आपको क्या लग रहा है, चेले उदास थे? What do you think? The disciples were very depressed, very आपको sad. लगता है चेले ऐसे थे यीशु मसीह के? You think they were like this? चेले किससे भरे हुए थे? What were the disciples filled with? आनंद से और पवित्र आत्मा से। With joy and with Holy Ghost. कौन कौन चेला है यहाँ पे यीशु मसीह का? Who is a disciple of Lord Jesus? अगर here? आप चेले हो तो बाइबल कह रही है चेलों को आनंद से और पवित्र आत्मा से भरना है। If you are a disciple of Lord Jesus, the Bible tells you to be filled with joy and the Holy Ghost. Amen. Only if you could see some faces that I see. केवल अगर आप कुछ चेहरे देख पाते जो मैं देख रहा हूँ. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can you put Psalm 16:11? भजन 16 उसका 11 देखिए. कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं हर समय? How many of you want to live and abide in God's presence all the time? ठीक है, साथ में पढ़ते हैं हिंदी में। Let's तैयार हैं read आप it लोग? together in Hindi. 1 2 3। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट। ये एक मिनट, ये हिंदी ना, कई बार हिंदी बाइबल ऐसा कर देती है, तेरे निकट क्या होता है? वो इंग्लिश बाइबल कह रही है इन योर प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति में, निकट नहीं। ये थोड़ा आनंद यहाँ है, परमेश्वर वहां है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जहां वो है वहां आनंद है। सो उसकी उपस्थिति में आनंद की, तेरे दाहिने हाथ, हाँ क्या बना रहता है? कई मसीह लोग से सुख नहीं, सुख हमारे लिए नहीं है। Some believers say, oh no, सुख की बात मत pleasures करो, are not for us. आनंद की बात मत करो। Don't talk about joy. हमारे लिए तो केवल श्राप और कलेश और दुख है। Oh, we just have curse. यीशु मसीह ने कहा हाँ इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश होंगे, मगर क्या करो फिर होंगे? उसने कहा नहीं, क्या करो जब कलेश आएंगे तो? हाँ क्या करो?
आनंद मनाओ। यानी जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आए, आनंद मनाओ। वो कह रहा है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। Jesus is saying you'll have troubles in life, but when troubles come, be joyful because I have overcome the world. हम लोग कभी समझे ही नहीं वो क्या कहना चाह रहे We हैं। never understood what he said. हमें लगता है वो कह रहा है We think he's saying, oh, everybody बुरी has खबर आई, sorrows. आनंद मनाओ। बोलो मेरे यीशु मसीह ने इस जगत को जीत लिया है। A bad news came, start rejoicing, saying, my Jesus has overcome this world. वो क्या कहना चाह रहा है आपको? What is he भाई trying to do? आनंद मनाओ क्योंकि तुम उस दुख में ज्यादा रहने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा उससे बाहर। He's saying, be joyful because you will not stay in that sorrow for a long time. I will take you अगर out. बीमारी आई है तो रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम में। If sickness has come, the reports will change in Jesus' name. आमेन। पड़ोसी को बोलो, बोलो रिपोर्ट बदल रही है अभी। Tell your neighbor the reports are changing now. हालेलुया।